calculated in the previous class. Then what should be the optimum choice of the voltage so that our transmission is highly efficient. किस टाइप से जो वोल्टेज जो है का जो कर्व है हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज तो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ कंडक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन इंक्रीज होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, एक पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमम वोल्टेज मिलता है, जहां पे हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसके बाद हमारा क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इकोनॉमिक वोल्टेज ट्रांसमिशन का। इकोनॉमिक वोल्टेज अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो what points should consider in our mind so to choose the economic voltage of transmission. Okay, a standard voltage of transmission, what is the standard voltage of transmission, 66 kV, 110 kV, 132 kV, 122 kV, 400 kV, और हमारा टॉलरेंस लिमिट क्या है, अप टू 220 वोल्ट प्लस माइनस 10%, एंड फॉर 400 kV plus minus 5% is our tolerance limit. And we have seen some empirical formula for the optimum voltage. What is that? 5.5 square root of L by 1.6 plus kVA by 150, where L is the length of distance of transmission in kilometer and kVA is power to be transferred. और इससे हमने कुछ we have seen that if we have 350 megawatt, suppose 350 megawatt of power to be transmitted, and distance is what, how much 500 kilometer. If you put this in formula, we'll get the economic voltage level. So what, how much power you want to be you have to transmit, and how much distance for how much distance you have to transmit, you can get the optimum economic voltage level. So choice of okay, according to the voltage transmission voltage, we have divided in three categories, transmission system in three categories: high voltage level, extra high voltage level, and ultra high voltage level. ये three categories. तो extra high voltage level was 100 to 230 for 200 miles, extra high voltage 230 to 800 kV for 400 to 500 miles, and ultra high voltage above 800 kV. Above 800 kV, if we go, it is ultra high voltage level. Then we have seen Kelvin law, which is economic sizing of conductor. So what is we have seen that the total cost is minimum. Total cost is minimum when the variable cost and fixed costs are equal. And hence we can find from here, we can find the cross section of the area. The cross section of area is square root of K2 by K1. This we have seen. This is economic size of the conductor. Then we have necessity or advantage of EHV transmission, extra high voltage transmission. एडवांटेज हमने देखा था, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एडवांटेज क्या है और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज को कम करने के लिए हमने क्या देखा था, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम हमने लाया था, HVDC करना चाहिए, वी शुड ट्रांसमिट एट हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन. HVDC comparison of HVAC and HVDC transmission system we have seen. Then we have seen the advantage of HVDC transmission. What are the advantage of HVDC transmission? We have seen the how we can when we are doing HVDC transmission, how different frequency generating station can be interconnected. The area which has which are operating at different frequency also, it can be interconnected. We have also seen that when we are doing HVDC transmission, we can transmit 300% more power with same setup of transmission system. Cost of, we have seen the cost of AC versus DC transmission, and we have seen at break even point where for which the DC transmission system will become cheaper before after this break even distance, because means इससे ज़्यादा अगर हम distance के लिए अगर हम transmit करना है तो HVDC will be cheaper. This we have seen. Then HVDC transmission system क्या है, कहाँ पे इंडिया में है, वो हमने देखा था. Basic principle of HVDC transmission system we have seen.
बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। एक हमने वीडियो भी देखा था जहां पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ओके। और फाइनली देखा था, हमें कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि होना क्या चाहिए ट्रांसमिशन सिस्टम में। हम जनरेशन करते हैं एसी में, फिर इसके बाद रेक्टिफाई करते हैं, एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं, और डीसी में अगर डीसी में ट्रांसमिट करते हैं, देन अगेन वी कन्वर्ट डीसी टू एसी, और उसको फिर एसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो दिस थिंग्स सर वी हैव यस यस। सर डीसी में ट्रांसमिट क्यों करते हैं, एसी में क्यों नहीं करते? यस सर लास्ट ट्रांसमिशन क्लास ओनली डीसी में होता है? ओनली डीसी में नहीं होता। लास्ट क्लास अगर अटेंड किए होगे तो हमने HVAC मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का डिसएडवांटेज भी हमने देखा था, और हमने देखा था कि जो कॉस्ट है, अगर हम एक सर्टेन डिस्टेंस है, एक ब्रेक इवन डिस्टेंस आया था। अगर ये ग्राफ अगर तुम देखो, अगर ये वाला ग्राफ देखो, तो एक देखो डिस्टेंस, एक यहाँ पे फिक्स टॉक, जो टर्मिनल का कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है, एसी का कम है, डीसी का ज्यादा है फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो लाइन कॉस्ट है एसी का तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस, एक्स एक्सिस क्या है डिस्टेंस, वाई एक्सिस क्या है कॉस्ट। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो लाइन कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एसी का लाइन कॉस्ट ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन डीसी का लाइन कॉस्ट उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट देखो, ब्रेक इवन डिस्टेंस पे, अगर इस ब्रेक इवन डिस्टेंस से कम डिस्टेंस के लिए अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो HVAC विल बी चीपर। लेकिन इस ब्रेक इवन डिस्टेंस से अगर हमें ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है देन HVDC विल बी चीपर, ओके। तो इसलिए इसलिए HVDC हमेशा नहीं यूज करते हैं। हम देखते हैं हमें कितना ज्यादा पावर ट्रांसमिट करना है और कितने डिस्टेंस के लिए करना है, इसके लिए चीपर होगा। अगर उस डिस्टेंस के लिए, ब्रेक इवन डिस्टेंस से अगर हमें ज्यादा, अगर हमें डिस्टेंस के लिए पावर ट्रांसमिट करना है तो HVDC हमारा चीपर होगा, तो हम HVDC यूज करते हैं, ऐसे ही HVDC यूज नहीं करते, ओके। और HVDC में एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, रिएक्टिव पावर का कोई फ्लो नहीं होता। हाँ बोलो। यस यस, एनी क्वेश्चन? सर यस यस आस्क। सर लाइन कॉस्ट और टर्मिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है सर? टर्मिनल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है, जब हम मान लो टावर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, टावर का इरेक्शन का कॉस्ट, टावर का सपोर्ट का कॉस्ट, इंसुलेटर का ये सब का कॉस्ट को बोलते हैं टर्मिनल कॉस्ट। इरेक्शन, लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड कॉस्ट, टावर कॉस्ट, ये सब क्या हो गया टर्मिनल कॉस्ट। और लाइन कॉस्ट क्या है, लाइन कॉस्ट क्या है, हाँ, ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट है, जो कंडक्टर का जो कॉस्ट है, वो दैट इज द लाइन कॉस्ट। और वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? यस सर, तो मतलब सर डीसी में अगर ज्यादा लेंथ को हमको ट्रांसमिट करना है तो डीसी में कम कॉस्ट में हो जाएगा। हाँ देखो, ये देखो ग्राफ को समझो, अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। बट ये सर होगा ग्राफ क्यों देखो, सर ऐसे? सी दिस हेलो ग्राफ। टर्मिनल कॉस्ट जो एसी का है वो कम है, डीसी का टर्मिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा है, लेकिन जो सर लाइन कॉस्ट है, यस सर जो स्किन इफेक्ट होता है हमारा, यस, वो डीसी में क्यों नहीं होता? बिकॉज इन डीसी करंट इज नॉट टाइम वेरिंग, टाइम वेरिंग नहीं है करंट। जी सर। टाइम वेरिंग नहीं है तो फ्लक्स वेरिंग नहीं हो रहा है, फ्लक्स वेरी नहीं कर रहा है, सो तो सर जो इंडक्टेंस नहीं प्रेजेंट इफेक्ट है। होता है वो सर, जी हाँ सुनो, इंडक्टेंस नहीं प्रेजेंट है, स्किन इफेक्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग करंट। करंट टाइम वेरिंग है तो फ्लक्स लिंकेज है, तो यहाँ इंडक्टेंस है, तो सेंटर पे, सेंटर के लिए इंडक्टेंस ज्यादा है। जो होल मान लो इतना मोटा कंडक्टर है, साइज का कंडक्टर है, जी सर। तो सेंटर पे तुम्हारा क्या है, सेंटर पे क्या है, करंट क्या है, सेंटर पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर, सॉरी इफेक्ट सेंटर की पे वजह क्या है, से जो बहुत हमारा ज्यादा करंट होता है फ्लक्स वो लिंकेज है। वेस्ट होता है क्या? क्या क्या? जो हमारा सर स्किन इफेक्ट होता है एसी करंट में, उसमें से क्या हमारा जो करंट होता है वो वेस्ट हो जाता है? वेस्ट नहीं होता है, करंट क्या होता है, पूरा होल क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो नहीं करता, क्रॉस, पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया से ऑक्युपाई नहीं करता करंट। करंट जो होता है वो सरफेस के क्लोज फ्लो करता है। तो हमारा पूरा जो होल, तुम्हारा जो इतना ट्यूब है, सपोज पाइप फ्लो करा, पाइप से पानी फ्लो कराना चाहते हो,
तो Okay, पूरा sir. पाइप नहीं ऑक्युपाई कर रहा है तुम्हारा पाइप, जो वाटर जो है पूरा पाइप नहीं, केवल सरफेस से फ्लो किया जा तुम्हारा, तो तुम्हारा जो पाइप सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करने के लिए मोटा पाइप चाहिए होगा ना। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्किन इफेक्ट की वजह से। सर एरिया कम हो जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है ना सर। बढ़ जाता है, यस। एरिया क्यों कम हो जाता है? क्योंकि रिलेटिव जो तुम्हारा रिलेटिव जो एरिया है, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो हमारा पूरा का पूरा एरिया यूज नहीं होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं है। स्किन इफेक्ट की वजह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट है नहीं। Okay, समझ sir. में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? Yes, sir. ठीक है। तो कमिंग टू आवर टुडे क्लास, नाउ कमिंग टुडे क्लास ट्रांसमिशन लाइन के बारे में और डिटेल में स्टार्ट करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन को दो टाइप से हम लेआउट कर सकते हैं। वन इज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अनदर इज बरीड केबल्स। ओके, मतलब अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन भी हम लेआउट कर सकते हैं, और एक ओवरहेड होता है, दिस इज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, और दिस इज अंडरग्राउंड केबल्स। अंडरग्राउंड केबल अभी हम देख रहे थे, दिल्ली में 220 kV का केबल लेआउट हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ना तुम्हारा, ये अफ्रीका एवेन्यू के तरफ में 220 केवी का 220 केवी का केबल लेआउट हो रहा है। तो ये सब दिल्ली ट्रांसको कर रहा है। ओके, तो अभी तुम देखोगे कि अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन लेआउट होता है काफी डिफिकल्ट होता है। केबल अभी पढ़ाएंगे हम, केबल, इफ यू स्टडी केबल, सो केबल बिकॉज यू सी हियर देयर इज वेरी स्मॉल when you are increasing the voltage, like see, पिछले क्लास में हमने बताया था कि नहीं, अभी तुमको वो नहीं बताया ना, अभी ये वाला नहीं बताया, अभी पार्ट अभी आगे बताएंगे कि जो जितना ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज्यादा होना चाहिए, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, क्लियर? जी सर। हाँ, the more voltage level you increase, the insulation requirement will increase. So transmission is at very high voltage. Transmission is at very high voltage. Okay. So if you are doing overhead transmission, we have opportunity, and we have opportunity to increase the distance, height of transmission line. We can increase the height, but when we are doing underground transmission, do we have opportunity to increase the height? No. What we have to do? We have to increase the insulation level. और एक certain level तक ही हम insulation level. So that's why underground जो transmission level है एक restricted होता है, certain voltage level से हम ज्यादा नहीं जा सकते हैं। Sir, what is disruptive stress? Sir, Yes. What is disruptive stress? करने का क्या मतलब सर disruptive? Stress. डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस क्या होता है? जिस स्ट्रेस पे, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जिस वोल्टेज लेवल पे तुम्हारा इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, इंसुलेशन इज अंडर स्ट्रेस, वोल्टेज बढ़ाओगे इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, सो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इज बेसिकली इंक्रीजिंग। ओके, इंसुलेशन में क्या, मटेरियल में क्या है? आयंस है। आयंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? आयंस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, कैट आयंस आयन को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। कितना स्ट्रांग है? अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एक हद से ज्यादा बढ़ा देते तो आयंस जो है ना टूट जाएगा, यानी आयोनाइज हो जाएगा, यानी वो अब इंसुलेटर नहीं रहा, ब्रेकडाउन हो तो गया, सर ऐसा कंडक्टर जो बन होता गया। है वो सिर्फ अंडरग्राउंड केबल्स में ही होता है ना? ये अंडरग्राउंड केबल में भी हो सकता है, ओवरहेड में हो सकता है ट्रांसमिशन। ओवरहेड में क्या बहुत ज्यादा इंसुलेशन बगैर तो एयर जो है आयोनाइज हो जाएगा, एयर आयोनाइज हो जाता है। ये जो कोरोना जो इफेक्ट है, हाँ, ये जो कोरोना इफेक्ट है, कोरोना इफेक्ट क्या है? हेलो सर, दैट इज ऑल्सो क्या हो रहा है? इंसुलेशन का क्या हो रहा है? एयर आयोनाइज्ड हो गया है, वहां से एनर्जी लीक कर रहा है, दैट इज कोरोना इफेक्ट। हेलो सर, हाँ, यस।
सर वो सॉरी सर, वो बच्चे कुछ अटके हुए हैं, जरा उनको एक बार आप एक्सेप्ट कर लीजिए। नहीं, कोई नहीं अटके हुए, सबको एक्सेप्ट कर लिया, मेरे यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा। सर 2 बच्चे अभी भी कह रहे हैं। नहीं अभी है नहीं, देखो उनसे पूछो, अब मेरे यहाँ पे तो नहीं शो कर रहा। ओके सर। ओके, ओके, गॉट इट। So यस सर। हम Sir, अभी now coming to the comparison between overhead and underground transmission. We have two ways of transmission, overhead and underground. दोनों में क्या डिफरेंट है? So overhead transmission lines का इकोनॉमिकल है, चीपर है, ठीक है, अब इकोनॉमिकल है, चीपर है, ठीक है, लेकिन क्या है, देखने में अच्छा नहीं लगता। हाइवर कॉजेज विजुअल पॉल्यूशन। विजुअल पॉल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है? दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट एस्थेटिकल। ओके, हाँ, वाइडली यूज इन ट्रांसमिशन ओवर लार्ज डिस्टेंस। और बेसिकली लेकिन बहुत लार्ज डिस्टेंस के लिए अगर हमें करना है ट्रांसमिशन, तो देन वी आर यूजिंग ओवरहेड ट्रांसमिशन। ओके सर ओवरहेड ट्रांसमिशन चीपर होता है एज कंपेयर टू अंडरग्राउंड? हाँ, या यस, Sir, cheaper- ऑब्वियसली इट इज चीपर। वाई इट इसमें इज चीपर? अंडरग्राउंड के केस में तुम्हें ग्राउंड खोदना पड़ेगा, पूरा ग्राउंड में लेआउट होना पड़ेगा, उसका इंसुलेशन के महंगा पड़ेगा। इंसुलेशन इज कॉस्टली। दैट्स व्हाई मतलब अंडरग्राउंड सिस्टम, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम। हाँ, यस, अंडरग्राउंड सिस्टम होता है और जो सर हमारा ओवरहेड सिस्टम होता है, उनकी इंसुलेटिंग भी दोनों अलग अलग तरीके से की जाती है। ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम में इंसुलेशन का क्या कोई जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सपोर्ट के पास केवल इंसुलेशन होता है, जो डिस्क इंसुलेशन होता है, बाकी इंसुलेशन कंडक्टर वो कवर्ड नहीं होता है। एयर, क्योंकि एयर ऑटोमेटिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एयर इज ए इंसुलेटर। जो हमारा ग्राउंड और ट्रांसमिशन जो कंडक्टर है उसके बीच में एयर है, एयर ही इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अलग से इंसुलेशन लेवल प्रोवाइड करने का कोई जरूरत ही नहीं है। समझ गए? यस ओके, सर, ओके सर। बट अंडरग्राउंड के इसमें क्या है, we have to because there is no any ground clearance, so there is a requirement of insulators, special insulators. ओके सर, okay okay यस यस सर। हाँ, तो अंडरग्राउंड केबल्स आर expensive than transmission lines. कितना? 5 to 25 टाइम हायर कैपिटल कॉस्ट फॉर 380 kV लाइंस। अगर 380 kV लाइंस अगर लेआउट करना जाओ तो अंडरग्राउंड के केस में 5 से 25 टाइम्स हायर कैपिटल कॉस्ट लगेगा। और रिपेयर भी मोर कॉस्टली है। रिपेयर क्यों कॉस्टली है? अगर मान लो कहीं फॉल्ट आया तो अगेन यू हैव टू पहले तो फॉल्ट करना, अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट करना, डिटेक्ट करना। फॉल्ट डिटेक्ट करना एक मुश्किल होता है, एक टफ जॉब होता है। फॉल्ट अगर डिटेक्ट हो गया तो वहां पे फिर से उसको रिपेयर करना टफ होता है, तो इट इज कॉस्टली। रिपेयर इज ऑल्सो कॉस्टली। ओवरहेड में तुम फॉल्ट को जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। बट क्या है, more overhead transmission lines is more vulnerable to fault because वो विजुअल है, वो ओपन है। अंडरग्राउंड में फॉल्ट कम आता है, समझे? क्योंकि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं है। अंडरग्राउंड सिस्टम इज नॉट एक्सपोज टू एनवायरमेंट। जो विंड हो गया, तुम्हारा साइक्लोन हो गया, ये सब स्नोफॉल हो गया, इन सब से एक्सपोज नहीं है, तो अंडरग्राउंड में फॉल्ट कम आता है, लेकिन आता है तो रिपेयर कॉस्ट ज्यादा होता है। ओके, अंडरग्राउंड दस इनविजिबल टू द पब्लिक, इनविजिबल नहीं होता। ग्राउंड एबव द केबल कैन बी स्टिल यूज। ग्राउंड एबव द केबल, ग्राउंड केबल के एबव में जो ग्राउंड है वो उस पर रोड होता है, उस पर उसको भी यूज कर सकते हैं। हाइवर मेंटेनेंस कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट ज्यादा होता है। वाइडली यूज इन अर्बन एरिया। जनरली हम ट्रांसमिशन जो अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन सिस्टम है कहाँ यूज करते हैं? जहां अर्बन एरिया, जहां लैंड कॉस्ट ज्यादा है। लैंड कॉस्ट ज्यादा है तो ट्रांसमिशन लाइन को इरेक्ट करने के लिए हमें वो नहीं मिलेगा। लैंड रिक्वायरमेंट, लैंड कॉस्ट ज्यादा है, तो अर्बन एरियाज में हमें ट्रांसमिशन लाइन को इरेक्ट करने के लिए लैंड ही नहीं मिलता, तो इसलिए अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन ही ऑप्शन है। ओके, लाइक दिल्ली सिटीज में लैंड एरिया क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अंडरग्राउंड केबलिंग करना पड़ेगा। ओके,
ओके, नेक्स्ट टेक्निकल। पहला हमने देखा, हमने इकोनॉमिकल देखा, नेक्स्ट इकोनॉमिकल देखा, हाँ, विजुअल देखा, नेक्स्ट टेक्निकल देखो। टेक्निकल ऑलमोस्ट केबल्स के केस में, एसी केबल के केस में ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस नीडेड। हाँ, कोई मेंटेनेंस ज्यादा जनरली नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन रिपेयर अगर होना, अगर रिपेयर अगर करना पड़े तो ज्यादा कॉस्टली होता है। रिपेयर इज मोर डिफिकल्ट। Technical difficulties is high voltage, and there are many technical difficulties at high voltage, and also there is limited distance. The distance is limited, means you can transmit to because since you are transmitting AC अगर तुम केबल लेआउट कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्टेंस एक लिमिटेशन हो जाता है। डीसी के केस में नहीं होता। हमने बताया था ना, डीसी के केस में डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। इसलिए तुमने एक लास्ट क्लास में एक वीडियो भी दिखाया था जो आयरलैंड और वेल्स के बीच में डीसी केबल लेआउट हुआ है। तो वहां पे डीसी के केस में हम केबल जनरली हम बेसिकली करते भी आजकल है, तो डीसी ट्रांसमिशन का केबल लेआउट करते हैं, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस लिमिटेशन नहीं है। एसी के केस में डिस्टेंस लिमिटेशन है, एक सर्टेन डिस्टेंस से ज्यादा हम नहीं जा सकते। देखो, वन इज सी वन दिस वीडियो। आर यू एबल टू हियर द वॉइस ऑफ द वीडियो? आई थिंक यू मे नॉट बी एबल टू हियर द वॉइस। लेट मी see. Are you able to hear the voice? Everyone is able to hear the voice? Yes, sir. आवाज। Okay. आ रही है सर, आ रही है। So this is underground transmission line, layout of underground transmission lines in Georgia by Georgia Transmission. Hi, I'm Craig Heighton with Georgia Transmission Corporation. We're a not-for-profit utility that plans, builds, and maintains the high-voltage electric transmission lines for Georgia's electric membership cooperatives. These EMCs serve nearly half of Georgia's population. And our job is to provide a robust transmission grid to bring affordable and reliable power to those 4.5 million EMC members. One way we keep our power grid strong is by building new transmission lines when needed. We know the need for a new power line can raise questions. Concerns over aesthetics and outages caused by severe weather sometimes prompt community leaders and customers to ask about burying transmission lines. For most projects, we examine the feasibility of underground construction. See, this is cable. This is transmission line cable. ये जो है, this is. A robust transmission grid to bring. One way we keep our power grid strong is by building new transmission lines when needed. We know the need for a new power line can raise questions. Concerns over aesthetics and outages caused by severe weather sometimes prompt community leaders and customers to ask about burying transmission lines. For most projects, we examine the feasibility of underground construction. But high-voltage power lines are very rarely installed underground for three reasons: construction costs, the line's life expectancy, and repair time during outages. So see here. See here.
अंडरग्राउंड लाइन में कॉस्ट ज्यादा होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होता है और रिपेयर टाइम ज्यादा होता है। ये 3 ड्रॉबैक्स है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस का। इसलिए अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस रेयरली इंस्टॉल्ड किया जाता है, रेयरली। सर हाँ, यस सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कैसे होता है? यस, सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कैसे होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों कम होता है? बिकॉज अगर अंडरग्राउंड में तुम लाइन कर रहे हो तो डिटोरिएट, इंसुलेशन विल डिटोरिएट मोर। हमारा वाटर के कांटेक्ट में है, हमारे अलग अलग सॉइल के कांटेक्ट में, केमिकल्स के कांटेक्ट में है, तो जो डिटोरिएशन होता है इंसुलेशन लेवल, इंसुलेशन का, वो ज्यादा होता है जब अंडरग्राउंड होता है। इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? कम होता है, कम हो सकता है। ओके, कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा होगा और रिपेयर टाइम भी ज्यादा होगा। ओके, हेलो सर। हाँ, ये डिसएडवांटेज है। यस सर, सर, could you please explain the why AC cost more while transmitting it for large distance? why AC cost more? Yes, sir. This thing I have already explained in previous classes. क्यों कॉस्ट होता Yes. है? Because when you go for higher and higher voltage, higher and higher voltage पे जाओ तो हमारा इंसुलेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सपोर्ट कॉस्ट जो है, देखो अगर हम मान लो ज्यादा, ये जो ज्यादा हाइट ज्यादा बनाना पड़ेगा, ट्रांसमिशन टावर का हाइट ज्यादा होगा, और ये हमारा क्या होगा, हमारा जो सपोर्ट होगा, इंसुलेशन का डिस्क होगा, वो सब ज्यादा होगा। तो इसलिए ये सब कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंडक्टर का जो है, कंडक्टर का जो हायर साइज बढ़ जाएगा, कंडक्टर का साइज, ये सब सॉरी साइज हम बोल रहे हैं, कंडक्टर का सपोर्ट का ये सब बढ़ जाएगा। ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे, ज्यादा डिस्टेंस हमें करना होगा तो सपोर्ट ज्यादा लगेगा, इंसुलेशन सपोर्ट ज्यादा होगा। ओके, सर ओवरहेड के बढ़ जाएगा। इंसुलेशन होता है सर? क्या क्या सर ओवरहेड के केस में तो इंसुलेशन सर हम करते ही नहीं ना सर। लेकिन सपोर्ट तो यूज करते हैं ना, इंसुलेशन सपोर्ट तो यूज कर रहे हैं। टावर्स में, टावर्स के साथ जहां कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन, वहां पे इंसुलेशन का सपोर्ट तो यूज कर रहे हैं, डिस्क इंसुलेटर यूज कर रहे हैं। तो सर ये मतलब डीसी में सर ऐसा नहीं करते? डीसी में कम करते हैं, डीसी में उतना नहीं यूज होता, उतना ही क्यों होता है? डीसी में क्यों फर्क कम हो जाता है, क्यों सस्ता होता है? बिकॉज सेम, मान लो यहाँ 3 फेज लाइन जा रहा है, सेम पावर के लिए 3 फेज लाइन देना पड़ता है। 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं हम, वहां पे 2 वायर सिस्टम से ही यूज हो जाता है। और 300% मोर पावर हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। तो इसलिए चीपर हो जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए चीपर पड़ जाता है, समझे? ओके। 3 फेज लाइन सर 2 वायर से यूज कर सकते हैं डीसी में? 3 फेज लाइन डीसी में 2 वायर यूज करते हैं ना, 2 वायर भी यूज 3 कर फेज सकते हैं, लाइन के सिंगल लिए। वायर भी यूज करते हैं। 2 वायर्स क्यों? एक प्लस एक माइनस के लिए, एक रिटर्न पाथ के लिए, एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। डीसी में तो 2 ही वायर यूज करेंगे। अगर 2 यूज नहीं करते, सिंगल वायर भी यूज कर सकते हैं। और ग्राउंड को क्या करना होगा? रिटर्न पाथ के लिए यूज करना होगा। तो जनरली ग्राउंड को रिटर्न पाथ के लिए हम अवॉइड करते हैं और 2 वायर सिस्टम यूज करते हैं। ये पूछ रहा हूँ कि सर 3 फेज के लिए सर 3 वायर यूज करी जाती हैं, तो क्या सर तीनों फेज के लिए डीसी में एक ही वायर यूज करेंगे? तीनों फेज के लिए डीसी में फेज कहाँ होगा? नहीं सर, आप बोल रहे हैं ना सर अभी। हाँ, डीसी में फेज कहाँ होगा? डीसी में फेज कहाँ होता है यार? ना, इसलिए 2 अरे वायर मतलब सिस्टम ही यूज करेंगे, ओनली 2 वायर सिस्टम, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। जहां पावर मान लो 1000 मेगावाट ऑफ पावर, 3 फेज पावर हमें ट्रांसमिट करना है, तो 3 वायर सिस्टम यूज होगा। RYB 3 वायर जाएगा 1000 मेगावाट ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन वही अगर हम डीसी में HVDC यूज करते हैं तो 2 ही वायर जाएगा ना। हाँ सर सर हाँ समझे? तो इसलिए हमारा चीपर हो गया। यस सर। ओके ओके सर। हाँ बोलो। सर मेरा नेटवर्क खत्म हो गया था, मत हो गया था सर, तो उसके बाद रिज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ सर उसमें से आपके में। तो डेटा बढ़ाओ, क्या कर सकते हैं फिर?
कैसे भी सर कंप्लीट होगा? ज्वाइनिंग अभी कर लीजिए ना सर मैं। क्लास में ही तुम्हारा डेटा खत्म हो जा रहा है। सर रिज्वाइन कर रहा हूँ, आप रिज्वाइन कर लीजिए ना एक बार फिर। ठीक है, रिज्वाइन हम करते हैं, मेरे पर भेजो। रिज्वाइन आया, हाँ अभी आया, प्रिंस कुमार। यस सर, यस। ओके, डन। ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, Unlike the lower voltage distribution lines that voltage transmission time during outages. Unlike the lower voltage distribution lines that deliver electricity to homes and businesses and are often buried, high voltage transmission lines are very expensive to bury. Underground construction can cost 5 to 8 times more than above ground transmission lines, and ratepayers will have to absorb the extra cost. पर माइल कॉस्ट अगर हम ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट लगभग ये है पर माइल कॉस्ट $10 million 500 वन था नहीं 15000, मतलब इतना पर माइल का कॉस्ट है डॉलर। तो इसका 10 है, समझ रहे हो? 10, तो ये 10 है, 10 लाख $10 है, million 10 लाख। हाँ, $10 million। वहां 1 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, तो यहाँ पे $10 million है। ओके, The primary reason for the increased cost is the specialized construction technique required to build lines underground. Crews must dig a trench every foot of ground on the route, and every 1,200 feet, they have to install truck-sized concrete vaults underground, where lines are spliced together. It's a complex and costly endeavor. Underground lines not only cost significantly more, but their lifespan is less than half as long as overhead lines. Underground cables must be replaced every 30 to 35 years, compared to 70 to 80 years for overhead lines. you can see the life expectancy of transmission line. Underground transmission line is only 35 years, whereas overhead lines is 80 years. Okay. Many factors, such as water seepage and loss of insulation, affect longevity. वही है, फैक्टर्स क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। वाटर सीपेज कैन बी फैक्टर, लॉस ऑफ इंसुलेशन कैन बी फैक्टर, केमिकल इफेक्ट कैन बी फैक्टर। हाँ, देयर आर मेनी फैक्टर्स। Underground lines are less prone to weather-related failures, but they're certainly not immune to outages. वेदर इम्यून है, वेदर की वजह से जो फेलियर होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस क्या है? वेदर की वजह से जो सिचुएशंस होते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन होते हैं, प्रोन होता है, फॉल्ट के प्रोन होता है। साइक्लोन आ गया, कभी वेदर बहुत ज्यादा बारिश हो गया, पेड़ गिर गया, तो ये सब की वजह से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? इंटरप्ट, टूट सकता है, इंटरप्ट हो जाता है। बट अंडरग्राउंड इन सब से तो इम्यून होता है, लेकिन पूरा फॉल्ट के इम्यून नहीं होता। हाँ बोलो। यस सर तो which one is best for अंडरग्राउंड या जो एटमॉस्फेयर में बेस्ट या कुछ ऐसा इसमें हम कौन कुछ नहीं बोल सकते क्या बेस्ट है। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम बोले तो तुमको, अगर शहर के एरिया में जहाँ पे लैंड कॉस्ट ज्यादा है बहुत, हाँ, जी जहाँ बहुत ज्यादा लैंड कॉस्ट है, जहाँ हमें विजुअल पॉल्यूशन जहाँ ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए अंडरग्राउंड हम प्रीफर करते हैं। जहाँ वेदर कंडीशन ऐसा है, बहुत ज्यादा साइक्लोन हो रहा है, बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन चेंजेस हो रहा है, वहां पे हम अंडरग्राउंड प्रीफर करते हैं। हाँ, समझे? यस सर। ओके, तो ऐसा ये नहीं है कि बेस्ट क्या है, बेस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। जहां पे जो जैसा सिचुएशन होता है वहां पे हम वैसा यूज करना पड़ता है। ऑप्शन है, यू हैव ऑप्शन, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके ओके सर। When outages do occur, it can take a week or more to locate and repair the problem underground, compared to only a few hours for overhead line repairs. Outages can affect tens of thousands of customers, and longer repairs mean more time without power at your home or business. At times, burying transmission lines makes sense. In fact,
Of the 17,000 miles of high voltage power lines in Georgia, 25 miles are underground lines. Responsible use of underground lines is one way we keep electric power in Georgia more reliable and less expensive than the national average. At Georgia Transmission, we work with communities to find the best possible solution when new lines are needed. It's to maintain a reliable power grid for businesses and families. So our main aim is what? To minimize the outage. Outage को minimize करना है, हाँ, interruption को minimize करना है, जैसे हम either हम over voltage करें या underground करें, ठीक है। तो हम अब basically our aim is to fulfill our objective fulfill क्या है? Cost minimum होना चाहिए, cost minimum होना चाहिए, outage minimum होना चाहिए। तो उसके लिए ओवरहेड जाना है तो ओवरहेड जाओ, अंडरग्राउंड जाना है केबल्स तो अंडरग्राउंड जाओ। ओके सर ट्रेंच क्या होता है सर? क्या सर अंडरग्राउंड सर Yes, ट्रेंच बोलो क्या आप। होता है सर? ट्रांस ट्रेंच ट्रांस? सर, ट्रेंच। ट्रेंच यस सर, यस सर ट्रेंच। ओके एक सेकंड, वन सेकंड। सर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, इफ आई एम ऑडिबल टू यू। ओके व्हाट टू रिपीट? सर बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू आई हैव जॉइंड लेट आफ्टर अ Okay. व्हाइल, सो प्लीज रिपीट। हाँ, so up to how much you have heard? सर टिल टाइप्स ऑफ केबल implementing like overhead and underground. Okay, so what I was telling that what complications can be there in underground transmission, can be costly, can have less life expectancy, can take more repair times, कितना ज्यादा कितना 5 to 25 times more costly हो सकता है, ये सब बोल रहे थे, बता रहा था मैंने। और बेसिकली व्हाट आई वाज टेलिंग दैट कि our main objective is to minimize outage, minimize cost, and minimize what is the मतलब अगर हमें क्या विजुअल, हमें एस्थेटिक लुक चाहिए या ऐसे नॉर्मली चल सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम जाते हैं, हम वी चूज कि हमें ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जाना है या अंडरग्राउंड जाना है। ओके, लाइक इन दिल्ली के केस में, दिल्ली के एरिया में अगर मान लो हमें ट्रांसमिशन लाइन जाना है तो हियर द लैंड रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई कॉस्टली, सो इट्स बेटर, क्योंकि अगर ओवरहेड ही यहाँ पे ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, समझे। और कंट्री साइड में जाएंगे, विलेज एरिया में जाएंगे, वहाँ लैंड रिक्वायरमेंट बहुत चीपर है लैंड, तो वहाँ पे कभी नहीं देखोगे अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ क्या हो रहा है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स है। So generally underground transmission lines are in urban areas. Okay, ये सब हम बता रहे थे। ओके, और ट्रेंच क्या है? ट्रेंच है तुम्हारा दो वैली के बीच में जो जगह होता है उसको शायद ट्रेंच हम बोलते हैं। ओके, जो तुम्हारा ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं, समुद्र में भी ट्रेंच होता है, गड्ढा हो सकता है, गड्ढा, उसको हम ट्रेंच बोलते हैं। ओके सर। Okay, cable lines. Now coming to cables. Cables are designed to be placed underground or underwater. Both sea में भी cable lines के through transmission होता है, sea में भी underground cablings होता है, जो हम last class में हम एक वीडियो दिखा रहे थे, वो देखो this is the cable. देख लो अलग अलग level of their different insulation levels are used. So cable lines are designed to be placed underground or underwater. Conductors are insulated from one another because three phase cable है, one another, ये देख लो, this is cable. Cables are insulated from one another and surrounded by protective sheet. Okay, cable lines are usually more expensive and harder to maintain. Or if you want to find if you see the ACSR conductors are much cheaper than cable. ठीक है, अगर मान लो 33 kV का केबल लो और 33 kV का ACSR कंडक्टर लो, ACSR कंडक्टर भी मच चीपर देन केबल्स।
ओके, दे हैव आल्सो कैपेसिटेंस प्रॉब्लम। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, कैपेसिटेंस प्रॉब्लम भी है, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन ग्राउंड एंड केबल इज लेस, तो कैपेसिटेंस भी ज्यादा होता है, बिकॉज कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो D जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ग्राउंड और केबल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसलिए कैपेसिटेंस का प्रॉब्लम भी ज्यादा होता है। इसलिए हाई लो लोड कंडीशन में केबलिंग अगर किया हुआ है तो लाइट लोड कंडीशन के केस में क्या हो जाता है, फ्रंटी इफेक्ट ज्यादा होता है केबल के केस में, वोल्टेज बढ़ जाता है लाइट लोड के कंडीशन में। ओके, ट्रांसमिशन लाइन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीरीज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड शंट कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो दिस वैल्यू डिटरमाइंस द पावर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एट फुल लोड। तो ये सब चीज, ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, और ये क्या डिटरमाइन करता है, कितना पावर कैरिंग कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन का, और वोल्टेज ड्रॉप क्या है फुल लोड में। तो हम पढ़ेंगे ये सब इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, एसी केबल्स वर्सेस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो एसी केबल्स versus overhead transmission line. See, we are doing some comparison depending upon environment, depending upon social and political issues, and depending upon the area where you have to use. So environment के depending upon environment, one is invisibility. Over AC cables, underground cables are invisible. एक visibility का problem नहीं है, लेकिन but danger क्या है, ऑयल स्पिल, पॉइजनस, SF6 आर्किंग बाई प्रोडक्ट्स। तो इस केबल में जो इंसुलेशन, कभी कभी क्या करते हैं हम SF6 गैस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, तो वो ऑयल स्पिल्स हो करके अंडरग्राउंड चीज को प्रॉब्लम भी कर सकता है ये केबल्स। SF6 गैस ये प्रॉब्लम भी कर सकता है, तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। इंसुलेशन डिटोरिएट होकर के अंडरग्राउंड वाटर में चला गया तो अंडरग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, और कुछ एडवांटेज भी है, इनविजिबल है, एडवांटेज भी है। सोशल एंड पॉलिटिकल वे भी हो सकता है, जैसे मान लो राइट ऑफ वे नीडेड, मान लो ये कहीं कहीं लैंड रिक्वायरमेंट करने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो राइट ऑफ वे बोलते हैं उसको। परमिटिंग बोलते हैं, परमिटिंग टेक्स टाइम, लेस कंसर्न फॉर हेल्थ रिस्क। तो ये सब फैक्टर है कि केबल्स होना चाहिए या ओवरहेड लाइंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारा जैसे कहीं कहीं क्या है, हम ट्रांसमिशन लाइन अगर हम ले जा रहे हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, तो वो बिल्डिंग के काफी क्लोज आ रहा है, सो दैट कैन कॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम्स। तो वहां पे के केस में अंडरग्राउंड एसी केबल्स लेआउट होना चाहिए। ग्राउंड एबव द केबल, ग्राउंड एबव, बिकॉज ग्राउंड एबव द केबल कैन स्टिल बी यूज। So that's why these things needs to be taken care of, whether you are going to lay out AC cables or overhead transmission lines. So that's why it's widely used in urban areas, because in urban areas the land cost is higher. This is the one of the, and we want more aesthetical, we don't want visual pollution also, so that's why it is widely used in urban areas. So AC cables, दो क्लासिकल केबल है, न्यू टाइप्स केबल है। तो पहले क्या करते हैं, पेपर इंसुलेटेड और ऑयल फिल्ड केबल यूज करते थे, और एक होता है XPLE। XPLE मींस क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। XPLE इज व्हाट, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन। तो दिस टू टाइप्स ऑफ केबल्स वी आर यूज्ड एंड दीज आर द क्लासिकल केबल्स। अब अनदर टाइप केबल आ रहा है हायर वोल्टेज के लिए, लोअर वोल्टेज के लिए, और कुछ मोर एक्सपेंसिव केबल्स आ रहे हैं। ओके, लाइक न्यू टाइप्स ऑफ केबल क्या है, गैस इंसुलेटेड केबल्स। इसमें गैस फिल अप रहता है, SF6 गैस फिल करते हैं, सो दैट इसको इंसुलेशन ज्यादा हो, बेटर इंसुलेशन हो। हायर वोल्टेज ड्यू टू बेटर इंसुलेशन हो, तो इसलिए हम हायर वोल्टेज के पे उसको ऑपरेट किया जा सकता है। सूटेड फॉर बल्क ट्रांसमिशन, ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट हम कर सकते हैं। लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। कॉम्प्लेक्स प्लेसमेंट, मेनी ज्वाइंट्स हम यूज कर सकते हैं, इंटरकनेक्शन कर सकते हैं। आर्किंग बाइक, लेकिन ये क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम है, आर्किंग बाइक प्रोडक्ट्स आर हजार्डस फॉर इन्वायरमेंट। मींस अगर आर्किंग हो रहा है तो ये जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो दैट विल बी हजार्डस फॉर इन्वायरमेंट, क्योंकि बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो ओजोन निकल सकता है, फ्लोरीन गैस निकल सकता है, दिस में भी हजार्डस फॉर इन्वायरमेंट। कंसीडर फॉर फ्यूचर टनल कनेक्शन। यस, What is meant by arcing?
आर्किंग, आर्किंग क्या हो रहा है, जब 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 तुम्हारा कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं वायर यहाँ 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 करंट जो है, करंट मान लो फ्लो कर रहा है, आर्किंग का मतलब आर्क क्या हो रहा है, आर्क इज व्हाट, चिंगारी देखते हो, चिंगारी व्हेन यू स्विच टर्न ऑन स्विच टर्न ऑफ स्विच, तो उसको जब चिंगारी जो निकलता है उसको हम बोलते हैं आर्क, तो वही बोलते हैं आर्किंग। तो इसी तरह अगर करंट को ब्रेक करते हैं हम, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है लाइन में, उसमें कभी ब्रेक हो रहा है तो उसको उसको बोलते हैं आर्किंग। ओके, एंड आर्किंग जहां हो रहा है तो आर्किंग बहुत ज्यादा हाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है वहां पे, और इतना ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि कुछ भी वहां पे क्या होता है, अगर कुछ भी मटेरियल आए तो डिटोरिएट कर सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, तो बाई प्रोडक्ट होता है, दैट विल बी hazardous फॉर एनवायरनमेंट। ओके सर। ठीक है, टेम्परेचर प्रोटेक्शन ऑपरेटिंग वेरी क्लोज टू लिमिट्स। तो सच टाइप न्यू टाइप्स ऑफ केबल का कुछ कुछ एडवांटेज है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, दैट वी हैव सीन। सो दिस थिंग्स आर केबल, सी दिस केबल लेआउट, ये सब केबल करते हैं, लेआउट करते हैं, कब केबल अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर रहे हैं तो देन वी आल्सो ड्रॉ कंक्रीटाइज किया जाता है। ओके, एंड ओवर Sir, which type of cable conductor used in underground? केबल कंडक्टर तो हम कॉपर ही यूज कर, कॉपर या अल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है, बट इट इज ये जो केबल के जो इंसुलेटर होते हैं, अलग अलग टाइप के इंसुलेटर यूज किया जाता है। मेन द इंसुलेटर इज, कंडक्टर सेम होता है बट इंसुलेशंस अलग अलग होते हैं, दैट डिफाइन द केबल, दैट चेंजेस द वे द केबल इज देयर। ओके Okay, sir. अभी जो हम केबल पढ़े, केबल हमने देखा, ये दिस इज द केबल यू सी, this is the different cable, this is different cable, this is different cable, you can see this is the cable, the current is carrying, current is going through only this, and these things are only what, insulation sheath to protect the cable, protect this wire। Okay, sir. समझे, ये Yes, सब sir. sheath है, अलग अलग लेवल ऑफ इंसुलेशन है, तो ये इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, इंसुलेशन मेक्स केबल कॉम्प्लिकेटेड। ओके, नाउ Yes. कमिंग टू द ओवरहेड लाइंस, अभी हमने केबल पढ़ लिया, केबल कंप्लीट किया, नाउ कमिंग्स टू ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस का हम देखते हैं क्या ओवरहेड लाइंस में क्या क्या होता है फीचर, ट्रांसमिशन टावर होता है, कंडक्टर होता है, अर्थ वायर होता है, गाइज स्टे होता है, इंसुलेटर होता है, वेव ट्रैप होता है। 1 2 3 4 5 6 इतना 6 चीज होता है, ये सब 6 पार्ट को हम पढ़ेंगे। तुम लोग का क्लास कब तक है? 12:30? Sir, 12:30 I can take class? 12:30? 12:15 तक है सर। Okay, I will take up to, I will end the class at 12:15. So these things we have to study in overhead lines। overhead जब ट्रांसमिशन सिस्टम में जाएंगे तो इन सब चीजों के बारे, ये सब चीज मिलके बना है ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन टावर, कंडक्टर, अर्थ वायर, गाइज एंड स्टेज, इंसुलेटर एंड वेव ट्रैप्स। ओके, सो क्या क्या ये सब चीजें, लेट अस सी इन आवर दिस टॉपिक। ओके, so these are the component of what, these are the component of overhead transmission line। so see here, earth wire, ये देख रहे हो earth wire, this is the earth wire, ये क्रॉस आर्म है, this is क्रॉस आर्म, this is डैम्पर, और इस सबका एडवांस, सबका आप पढ़ेंगे क्यों ये ऐसा यूज कर रहे हैं, क्यों, व्हाट इज द यूज ऑफ डैम्पर। ये स्पेसर है, स्पेसर दो कंपोजिट कंडक्टर के बीच में हम स्पेस लगा, स्पेसर्स, कंडक्टर्स यूज टू कैरी द पावर करंट, इंसुलेटर्स एंड दिस टावर्स। तो टिपिकल ये ट्रांसमिशन लाइंस हमने दिखा दिया कि ट्रांसमिशन लाइन ऐसा हमारा दिखता है, उसमें ये सब चीज होते हैं। ओके, इन सब ये सब कंपोनेंट से मिलकर ट्रांसमिशन, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम बना है। ओके, नाउ कमिंग टू द ट्रांसमिशन, फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर में क्या क्या है, तो लाइन सपोर्ट्स, बेसिकली ये क्या है, लाइन सपोर्ट्स, ये क्या हो सकता है, पोल। चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ सच सपोर्ट्स आर क्या, उस चीफ रिक्वायरमेंट क्या है सपोर्ट्स के लिए, दे मस्ट बी मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 to 3, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए टावर को, विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 2.5 to 3, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब 2.5 या 3 टाइम्स ज्यादा भी स्ट्रेस दें तो वो सह ले, तो ये है मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग का मतलब। दे मस्ट बी लाइट इन वेट विदाउट द लॉस ऑफ इट, और वेट भी लाइट होना चाहिए, और वेट लाइट करने के चक्कर में स्ट्रेंथ का कमी नहीं होना चाहिए। ओके, दे मस्ट हैव लीस्ट
नंबर ऑफ पार्ट, लीस्ट नंबर ऑफ पार्ट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, मस्ट बी चीप, देयर मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम, मेंटेनेंस कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, दे मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल फॉर पॉइंट्स एंड इरेक्शन ऑफ लाइन कंडक्टर, मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, दे मस्ट हैव लॉन्गर लाइफ एंड मस्ट बी प्लीजिंग शेप, शेप भी अच्छा दिखना चाहिए। तो ये क्या है, दीज आर द requirements, these are the chief requirement for line supports या टावर, ट्रांसमिशन टावर का ये चीफ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं ऐसे रिक्वायरमेंट में, क्या क्या फिट होता है, क्या क्या यूज करते हैं हम लाइन सपोर्ट्स में। तो वुडन पोल्स यूज होता है, बहुत जगह वुडन पोल्स पहले यूज होता था, अभी भी कुछ जगह यूज होता है। क्यों यूज होता है उसका भी देखेंगे, एडवांटेज क्या है। स्टील ट्यूबुलर पोल्स अभी भी यूज होता है। तुम अगर मान लो जाओ विलेज में जाओ या स्ट्रीट में जाओ, वहां पे स्टील ट्यूबुलर पोल्स दिखेगा। रेनिफोर्स कंक्रीट पोल्स ये अब ज्यादा यूज होने लगा, रेनिफोर्स कंक्रीट पोल्स और स्टील टावर्स। So these things are used for as a line support. अब वुडन पोल्स क्या क्यों यूज होता था, चीपेस्ट होता था, चीपेस्ट, जहां पहले वुड्स वो हमारा ज्यादा होता था, तो चीपेस्ट, यूज फॉर लाइंस वेयर स्पैन इज शॉर्ट एंड टेंशन लो। कहां पे यूज होते थे, स्पैन इज शॉर्ट, स्पैन इज शॉर्ट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज कॉल्ड स्पैन। तो जहां स्पैन शॉर्ट है और टेंशन लो है, टेंशन मतलब जो लाइन का जो वेट है कम आ रहा है तो टेंशन लो होगा। तो जहां टेंशन लो होगा और स्पैन शॉर्ट है, स्पैन हमारा क्या है छोटा है, तो वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुडन पोल्स यूज करते थे। पोल हैज लिमिटेशन ऑफ हाइट एंड डायमीटर। अब देखो पोल, अगर वुडन पोल यूज करें तो हाइट तो लिमिटेशन होगा, सर्टेन हाइट से ज्यादा हम नहीं जा सकते हैं, सर्टेन हाइट से ज्यादा वुडन पोल्स नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वाइंट तो नहीं कर सकते ना हम। और डायमीटर भी कम हो सकता है, डायमीटर का भी लिमिटेशन है, मतलब सर्टेन एक मोटाई से ज्यादा हम नहीं जा सकते। ठीक है, ओके। वुड हैज नेचुरल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। वुड का देखो एडवांटेज क्या है, नेचुरल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है, नेचुरल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड लेसर फ्लैश ओवर टेक्स। लेसर फ्लैश ओवर मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, मान लो गीला हो गया, तो फ्लैश ओवर होता है, मतलब चिंगारी निकलता है अच्छा से, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश ओवर। तो कम फ्लैश ओवर होता है तुम्हारा वुडन पोल्स में ड्यू टू लाइटिंग। अगर लाइटिंग हो गया, मतलब अगर लाइटिंग स्ट्राइक हो गया तो लेसर फ्लैश ओवर टेक्स प्लेस। वुडन पोल्स जनरली टेंड टू रॉट बिलो द ग्राउंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वुडन पोल्स जनरली रॉट बिलो द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के बिलो में वो क्या होता है, डिटोरिएट हो जाता है, कॉजिंग फाउंडेशन फेलियर। इसलिए क्या हो सकता है, टूट सकता है, फाउंडेशन फेलियर हो सकता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना अंडरग्राउंड जा रहा है पोल, उस पोल के में क्या करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव ऑयल यूज करते हैं, क्रिजोट ऑयल, कैरिजोट ऑयल से हम वुडन पोल से को हम प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना अंडरग्राउंड जा रहा है, द पोल बिलो द अंडरग्राउंड लेवल इज इम्प्रेग्नेटेड विथ प्रिजर्वेटिव कंपाउंड्स लाइक क्रिजोट ऑयल। फॉर ग्रेटर स्ट्रेंथ डबल पोल स्ट्रक्चर, ए स्ट्रक्चर या एच स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ए स्ट्रक्चर, एच स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो, दिस इज ए स्ट्रक्चर, दिस इज एच स्ट्रक्चर पोल। ओके ओके, द मेन ऑब्जेक्शन, लेकिन क्या क्या मेन ऑब्जेक्शन है, क्यों हमने बंद कर दिया वुडन पोल यूज करना। ऑब्जेक्शंस क्या है वुडन पोल सपोर्ट्स का, क्या है, रॉट हो जाता है ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड के अंदर क्या होता है, रॉट हो जाता है। कंपैरेटिवली स्मॉलर लाइफ, 20 to 25 ईयर्स का ही लाइफ होता है। कैनॉट बी यूज फॉर वोल्टेज हायर देन 20 kV, 20 kV से अबव हम यूज नहीं कर सकते हैं। लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं है, और रिक्वायर पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, और रिकॉर्ड पीरियोडिकल इंस्पेक्शन का जरूरत होता है इसमें वुडन पोल्स में। नेक्स्ट कमिंग टू द कंक्रीट पोल्स। कंक्रीट पोल क्या होता है, कंक्रीट को पोल्स का आर रेनिफोर्स टू गिव ग्रेटर स्ट्रेंथ। रेनिफोर्स जो आरसीसी सीमेंट है उनसे बना होता है, और ये ज्यादा रेनफोर्स, उसमें छड़ ये सब लगाकर रेनिफोर्स करके हम क्या होता है, ग्रेटर स्ट्रेंथ हमें मिलता है। इट हैज लॉन्गर स्पैन, लॉन्गर लाइफ स्पैन देन वुडन पोल। वुड मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है। दे आर हैवी एंड आर लाइकली टू गेट डैमेज ड्यूरिंग लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन ड्यू टू दियर ब्रिटल नेचर। बिकॉज इट इज ब्रिटल नेचर, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना, इरेक्शन करना, लोड करना, अनलोड करने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या हो सकता है, इसमें डैमेज हो सकता है। Nowadays pre-stress concrete supports are manufactured in pieces. अब क्या आजकल क्या हो रहा है कि प्री स्ट्रेस
कंक्रीट सपोर्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन पीसेस, और वहां जाकर के असेंबल कर दो, छोटे छोटे पीस में मैन्युफैक्चर किया जाता है और वहां जाकर के साइट पे जाकर के वी कैन असेंबल इट। ओके, स्टील पोल्स क्या है? ट्यूबुलर स्टील पोल्स और ग्राइडर स्टील मैस आर फेवर्ड फॉर लो एंड मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। लो और मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के लिए तुम देखोगे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ज्यादातर स्टील पोल्स यूज किया जाता है। लॉन्गर स्पैन इज पॉसिबल, लॉन्गर स्पैन, इसमें स्टील पोल्स का मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, लाइटर वेट भी होगा, और लॉन्गर स्पैन इज पॉसिबल। पोल्स नीड टू बी गैल्वेनाइज्ड, लेकिन यहाँ इसको हम क्या करना चाहिए, करते हैं कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, नीड टू बी गैल्वेनाइज्ड and painted periodically to prevent corrosion. Maintenance is expensive. Here the maintenance is expensive. Next, coming to the steel towers. Lines of 66 kV are supported on towers. 66 kV से above गए, 66 kV से above ट्रांसमिशन हमें कुछ भी करना, लाइन ओवरहेड लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए, स्टील टावर्स का यूज करते हैं। They are fabricated from painted or galvanized angle section which are transported separately and erection done on site. सेपरेटली छोटे छोटे पीस में इसका फैब्रिकेशन होता है, पेंटेड होता है, गैल्वेनाइज्ड होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है और साइट पे ले जाकर इसको असेंबल कर दिया जाता है, इरेक्शन किया जाता है। लॉन्ग लाइफ है इसका, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी है। ओके, दे कैन विथस्टैंड सीवियर वेदर कंडीशन। सीवियर वेदर कंडीशन में भी ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे कैन विथस्टैंड विथ इट। The height of the tower depends on operating voltage and span length. Height of tower depends upon कितना हाइट जाना है, हाइट भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ बढ़ा दो, नंबर ऑफ इसके पार्ट्स बढ़ा दो, हाइट को इंक्रीज करते हैं। स्पैन लेंथ, तो हाइट और कितना स्पैन लेंथ जाना है डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज। हाइट ऑफ टावर्स डिपेंड्स अपॉन ऑपरेटिंग वोल्टेज और स्पैन लेंथ और ऑपरेटिंग वोल्टेज पे हाइट डिपेंड करता है। द लेग ऑफ द टावर आर सेट ऑन कॉन्क्रीट फाउंडेशन। लेग क्या है, कॉन्क्रीट फाउंडेशन पे सेट होता है। ये ट्यूबुलर पोल्स है, ये ट्यूबुलर स्टील पोल्स दिखाया जा रहा है, ये जो जनरली विलेज में होता है या स्ट्रीट में डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ठीक है, ये है स्टील टावर्स, दीज आर द स्टील टावर्स। ट्रांसमिशन में हम जनरली यूज करते हैं हाइयर वोल्टेज ट्रांसमिट करने के लिए 66 kV से अबव के लिए हम स्टील टावर्स यूज करते हैं। दीज आर द स्टील टावर्स। ओके, और यू कैन सी हियर असेंबलिंग दिया हुआ है, हर छोटे छोटे पार्ट में, हर एक मीटर पे क्या होता है, इसका हम असेंबलिंग करते हैं, नट ज्वाइंट ये सब करके हम इसको इंक्रीज करते हैं। हाइट, कितना हाइट चाहिए, कितना हाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे असेंबल किया जाता है। Types of steel tower, different types of steel towers are there. Tangent tower, deviation tower और tangent tower, deviation tower, ये दो टाइप्स है स्टील टावर्स के। ओके, हेलो सर, tangent टावर्स में भी अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, tangent टावर्स क्या है, they are used for straight runs, straight runs के लिए यूज होता है tangent टावर्स। स्ट्रेस इज ड्यू टू वेट ऑफ लाइन, विंड एंड आइस लोडिंग, और इसमें जो स्ट्रेस होता है मींस वेट जो आ रहा है, इसका स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, वेट ऑफ लाइन के वजह से और विंड और आइस लोडिंग के वजह से, विंड के वजह से और आइस लोडिंग के वजह से ये इस पे स्ट्रेस होता है। एक्स्ट्रा फोर्स ड्यू टू ब्रेक इन द लाइन ऑन द वन साइड, या कई लाइन अगर मान लो ब्रेक कर गया बीच में, तो ब्रेक हो गया तो उसका जो एक्स्ट्रा फोर्स उसके वजह से डेवलप हो सकता है। बेस इज आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसका जो बेस है यहाँ पे देखो, जो बेस है यहाँ पे वो क्या हो सकता है, आइदर स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज, और इसमें जो इंसुलेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। यहाँ पे ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। तो टेंजेंट टावर या डिविएशन टावर क्या है, जहाँ पे मान लो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वहां पे डिविएशन टावर यूज करते हैं। दे आर यूज वेयर ट्रांसमिशन लाइन चेंजेस डायरेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहाँ डिविएशन टावर यूज करते हैं। दे हैव ब्रॉडर बेस होता है, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स एंड आर कॉस्टलियर। स्ट्रेन इंसुलेटर इज यूज, और इस केस में क्या यूज करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं टेंजेंट टावर में, और इसको डिविएशन टावर को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। स्मॉल एंगल टावर्स, मीडियम एंगल टावर्स एंड लार्ज एंगल टावर्स। स्मॉल एंगल टावर्स 2 to 15 डिग्री चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो स्मॉल एंगल टावर्स।
15 to 30 डिग्री चेंज हो रहा है तो मीडियम एंगल टावर्स, एंड 30 to 60 डिग्री अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है देन इट्स कम्स टू लार्ज एंगल टावर्स। ओके, ये दिस इज द स्टील टावर्स, यू कैन सी। सर इन दोनों टावर्स की पिक होगी आपके पास तो एक बार दिखा देना। सब पिक है, सब दिखा रहे हैं। ये देखो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टावर। अभी टाइप्स ऑफ टावर देखो, टाइप ए टावर, टेंजेंट टावर में अलग, टेंजेंट टावर में भी अलग अलग टाइप्स हैं। उसका टाइप ए टावर, टेंजेंट टावर विद सस्पेंशन स्ट्रिंग। अगर टेंजेंट टावर सस्पेंशन स्ट्रिंग के साथ है तो इसको ये टाइप ए टावर्स बोल रहे हैं। ये यूज्ड ऑन स्ट्रेट रन्स अप टू 2 डिग्री लाइन डाइवर्जन। स्ट्रेट रन्स 2 डिग्री लाइन डाइवर्जन के लिए ये यूज हो रहा है। टाइप बी टावर्स यूज फॉर डेविएशन फ्रॉम 2 to 15 डिग्री, 2 to 15 डिग्री का डेविएशन के लिए टाइप बी टावर्स। स्मॉल एंगल टावर विद टेंशन स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। टाइप सी टावर्स मीडियम एंगल टावर विद टेंशन स्ट्रिंग 15 to 30 डिग्री डेविएशन के लिए। टाइप डी टावर लार्ज एंगल टावर विद टेंशन स्ट्रिंग यूज फॉर डेविएशन फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। टाइप ई टावर डेड इन, मतलब एक डेड इन टावर है, मतलब उसके बाद कोई टावर नहीं है, तो इसके लिए ये टाइप ई टावर है। यूज ये क्या है, डेड इन टावर विद टेंशन स्ट्रिंग यूज फॉर लाइन टर्मिनेशन इन स्टार्टिंग, या लाइन टर्मिनेशन जहां हो रहा है, लाइन एंड हो रहा है या जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए टाइप ई टावर यूज किया जाता है। सस्पेंशन टावर स्पैन सस्पेंशन टावर का लगभग 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का स्पैन होता है इसको सस्पेंशन टावर पे। यूज फॉर रिवर क्रॉसिंग के लिए, माउंटेन क्रॉसिंग के लिए यूज किया जाता है जनरली सस्पेंशन टावर को। ओके, सस्पेंशन टावर को जनरली कहाँ यूज किया जाता है, रिवर क्रॉसिंग, माउंटेन क्रॉसिंग। इसका स्पैन क्योंकि बहुत ज्यादा है, स्पैन क्या होता है, स्पैन क्या होता है, 2 टावर के बीच का लेंथ, ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लगभग का इसका स्पैन है। ट्रांसपोजिशन टावर कहाँ ट्रांसपोजिशन के लिए यूज किया जाता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ टावर यूज, जहां ट्रांसपोजिशन करते हैं वहां पे ट्रांसपोजिशन टावर यूज करते हैं। तो ये देखो दीजिए, यह भी देखो ये फोटो, ये सस्पेंशन टावर है, ये ट्रांसपोजिशन टावर है, ये टेंशन टावर है। ओके, यस सर, गॉट इट, यस सर। ये देखो अभी ये सारा फोटो में ये सब अलग अलग टावर दिखा दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टावर इस पिक्स में है। हाँ, वुडन टावर है ठीक है, अलग स्टील टावर है, एच टाइप टावर है, अलग अलग टावर है, देख लो यहाँ पे, ठीक है सर ये इसकी सर एक पीडीएफ बना के सेंड कर दीजिए आप। हम सारा सेंड कर देंगे, सब सारे मटेरियल हम सेंड करेंगे तुमको। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो सिलेक्शन ऑफ टावर, किस बेसिस पे टावर का हम सेलेक्ट करते हैं, तो देखो पहला पॉइंट क्या है, सिंगल सर्किट का लाइन है हमारा या डबल सर्किट का लाइन है, क्या सर्किट, कितने सर्किट का है। सर नेक्स्ट क्लास भी है सर, क्या सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके सो ओके, this selection of tower I will start in next class. Okay सर। सर YouTube पे अपलोड कर देना सर ये। Okay, yeah, सर I will ग्रुप में upload. मटेरियल सेंड कर देना सर ये। Yes, I will upload. सर टेंशन स्ट्रिंग क्या होता है? हाँ, सब पढ़ेंगे, सब बताएंगे। टेंशन इंसुलेटर में पढ़ेंगे, टेंशन स्ट्रिंग ये होता है, जब सैक पढ़ेंगे तो तुमको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा टेंशन क्या होता है। टेंशन स्ट्रिंग क्या हो रहा है, हम ट्रांसमिशन लाइन में को सपोर्ट करने के लिए, टेंशन प्रोवाइड करने के लिए वो यूज करते हैं। ओके सर।